کپڑے دھوتے دھوتے شبانہ کو یوں لگا جیسے کوئی اس کے دل کو اپنی جانب اس طرح کھینچ رہا ہے جیسے درخت کے ساتھ اگی ہوئی مضبوط شاخ کو توڑ کر الگ کرنا چاہتا ہو۔ سیدھے ہاتھ میں صابن پکڑے فرش پر کپڑے رکھے وہ مل مل کر دھو رہی تھی۔ اس کا ہلتا ہوا بدن رک گیا۔ الٹے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر اس نے دل کی کیفیت کو محسوس کرنا چاہا۔ اندر کچھ کلا بازیاں سی محسوس ہو رہی تھیں۔ کل رات سوتے میں بھی اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو پکڑ کر زور سے کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر جاگی اور بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں بستر پر بیٹھی وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید کچھ اور بھی ہو، مگر کچھ نہ ہوا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار جوں کا توں تھا، وہ پھر سو گئی۔ معمول کے مطابق صبح اٹھی اور گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ کچن اس نے کبھی کسی کے حوالے کیا ہی نہیں تھا۔ شوہر کو ناشتہ دیا۔ اسے آج گجرانوالہ اپنی دکانوں کا کرایہ وصول کرنے جانا تھا۔ وہ چلا گیا۔ چھوٹی بیٹی ناشتہ کر کے اپنے کلینک چلی گئی تھی۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ گلی میں کھول کر والدین نے اسے ایک ہومیوپیتھک کلینک کھول دیا تھا۔ پہلے اسے باقاعدہ 3 سالہ کورس بھی کروایا تھا۔ اس سے بڑی 3 لڑکیاں بیاہ دی گئی تھیں۔ اکلوتا بیٹا لاٹری کے ذریعے کینیڈا چلا گیا تھا۔ چھوٹی بیٹی طلت کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ لہیم شہیم شوہر نے پہلے ہفتے ہی اسے ہمیشہ کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ دکھ شبانہ کے کلیجے کو لگ گیا تھا۔ اگرچہ باپ نے ہمت بندھا کر ایک اچھے گھر میں کام پر لگا دیا تھا جہاں وہ غریبوں کا مفت علاج کرتی تھی۔ جب دل کی کھچاوٹ اور گھبراہٹ بڑھتی ہی گئی تو شبانہ کپڑے چھوڑ کر ننگے سر ننگے پیر باہر آ گئی۔ طلت کو آوازیں دیں۔ اس وقت کلینک میں کوئی مریض نہیں تھا۔ وہ دوڑی آئی، زرد ہوتی ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے امی؟ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی دوائی لاؤں؟ اس نے اماں کی نبض پکڑ لی۔ نہیں، جلدی سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ تمہارے ابو تو ابھی کہیں راستے میں ہوں گے۔ امی آپ کپڑے بدل لیں، آپ کے سارے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ میں باہر نکل کر رکشہ پکڑتی ہوں۔ اتفاق سے ایک خالی رکشہ سامنے نظر آیا۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا، ماں کو بٹھایا اور محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا ان کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا کہ ان کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فوراً کسی ہسپتال لے جائیے۔ مگر ڈاکٹر صاحب ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، وقتی طور پر تو کوئی دوائی دیں تاکہ یہ ہسپتال جانے کے قابل ہو سکیں۔ طلت نے کہا نہیں۔ ڈاکٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا وقت ضائع نہ کریں، فوراً جائیں اور جلدی لے کر جائیں۔ ڈاکٹر یوں گھبرا کر پیچھے ہٹا کہ طلت کو سخت غصہ آیا، حالانکہ وہ فیس اور دوائیوں کے پیسے ساتھ لے کر گھر سے نکلی تھی۔ مگر ڈاکٹر نے تو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ رکشہ ابھی باہر ہی کھڑا تھا۔ گرتی پڑتی ماں کو اس نے رکشے میں بٹھایا، رکشے والے سے کہا کہ پبلک ہسپتال میں لے چلو۔ ماں کو اپنے کاندھے سے لگا کر اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال دیا تھا کہ رکشے کے جھٹکے سے اسے تکلیف نہ ہو۔ پھر بھی تھوڑی دیر بعد اس کی نبض چیک کرتی رہی جس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ اپنے پہلو کے ساتھ لگا کر اس کی دھڑکنیں شمار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ رکشے کے بے ہنگم شور میں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر وقتی طور پر کوئی دوائی دے دیتا تو کیا حرج تھا؟ ماں بے سدھ ہوئی جاتی تھی۔ راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ پبلک ہسپتال آ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے رکشے والے سے کہا وہاں سامنے جہاں ایمرجنسی لکھا ہے وہاں لے چلو۔ باہر ہسپتال کے کچھ ملازم کھڑے تھے، اس نے ان سے کہہ کر اسٹریچر منگوایا۔ دوڑ کر وہ اسٹریچر لے آئے جو باہر ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے رکشے والے کو پیسے دے کر کراہتی ہوئی ماں کو ان لوگوں کی مدد سے اسٹریچر پر لٹا دیا۔ انہیں سارا ماجرا سنایا اور پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اتنے میں یونیفارم میں ملبوس ایک آیا قسم کی عورت بھی آ گئی۔ اس نے دیکھا عورت مریضہ ہے تو باقاعدہ اسٹریچر چلا کر ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ پھر اس نے طلت کو بتایا کہ سیڑھیاں چڑھ کر ڈاکٹر قدیر کا دفتر ہے جو ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے چٹ لائیں یا پھر ان کو ساتھ لے کر آئیں۔
फिर वो जहाँ कहेंगे वो मरीज़ा को ले जाएंगे। तल्लत घबरा गई, मैं ऊपर जाऊंगी तो मेरी माँ यहाँ अकेली पड़ी रहेगी। हाय बीबी, आपा ने आगे आकर कहा, हम किस मर्ज की दवा हैं, हमारा यही काम है मरीजों के पास खड़े होना, उनकी हिफाजत करना। आप दौड़ कर जाएं, देर ना करें। तल्लत अपनी माँ को उनके पास छोड़कर ऊपर चढ़ गई। डॉक्टर साहब दफ्तर में मौजूद ना थे, वार्ड का राउंड लेने गए थे। उनको ढूंढकर बताने और लाने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। डॉक्टर साहब नीचे आए, जल्दी जल्दी मरीज को देखा, मगर मरीज़ा तो रिक्शे से उतरने के बाद ही अपनी मंजिल पर रवाना हो चुकी थी। फिर भी डॉक्टर साहब ने उसे अच्छे से चेक किया। नर्स सारे आले वहीं उठा लाई थी। सारी कोशिशों के बाद डॉक्टर ने हमदर्दी से तल्लत की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी। तल्लत की तो चीखें ही निकल गईं। माँ ये तूने क्या किया? डॉक्टर का इंतज़ार भी ना किया। तल्लत का रद्द अमल कुदरती था। डॉक्टर ने नर्स से कहा, जब ज़रा सुकून में आए तो इन्हें दफ्तर में ले आएं। ज़रूरी कार्रवाई करके इन्हें कागजात दे दिए जाएंगे। थोड़ी देर चीख चिल्लाकर तल्लत ने पर्स में से अपना मोबाइल निकाला ताकि बाप को इत्तला कर दे, मगर उनका नंबर अभी भी बंद मिल रहा था। नर्स उसे अपने साथ ले गई, कागजात बनाकर दिए, एम्बुलेंस पर मैयत ले जाने की इजाज़त भी लिख कर दे दी। रोती हुई तल्लत माँ की लाश के पास आ गई। उस वक्त अस्पताल का एक मुलाजिम खुद स्ट्रेचर के पास आ गया। तल्लत ने पूछा, एम्बुलेंस कहाँ मिलेगी? उस आदमी ने, जिसका नाम सिराज दीन था, बाहर निकलकर दफ्तर का रास्ता बताया कि परमिट वहाँ दिखा दें, एम्बुलेंस आपके साथ ही आ जाएगी। मगर मेरी अम्मी यहाँ अकेली पड़ी रहेंगी, उसने रोते हुए पूछा। उसने कहा, हम किस मर्ज की दवा हैं? आपा ने फिर उसी अंदाज में कहा, हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं। जी आप जाएं, जल्दी जल्दी जाने का बंदोबस्त करें। जब वो एम्बुलेंस के दफ्तर की तरफ जा रही थी तो उसके वालिद का फ़ोन आ गया। वो अभी अभी गुजरावाला पहुँचे ही थे। उसने रो रो कर सारी कहानी अपने वालिद को सुनाई। उन्होंने कहा कि वो अभी उसी बस से वापस आ रहे हैं, उनके आने तक वो हौसले से सारे काम करे। तल्लत के जाते ही आपा हनीफा बेगम ने लाश पर पड़ी हुई चादर इस तरह हटाई कि उसके चेहरे और कलाइयों का जायज़ा ले लिया। फिर कोई बात सरगोशी के अंदाज में सिराज दीन के कान में कही। सिराज दीन बाहर निकलकर एम्बुलेंस के दफ्तर की जानिब मुंह करके खड़ा हो गया। हनीफा बेगम ने बड़ी महारत से लाश की कलाइयों में पहनी हुई सोने 6 चूड़ियां और दोनों अंगूठियां उतार ली। कानों के टाप्स रहने दिए कि उन पर किसी भी वक्त नजर जा सकती थी। अभी सिराज दीन की तरफ से एम्बुलेंस रवाना होने का सिग्नल नहीं मिला था, इसलिए वो जल्दी से नज़दीकी गुसलखाने में घुसी। सारी चूड़ियां और दोनों अंगूठियां उसने अपने इजार बंद के साथ बांध लीं और शलवार के अंदर डाल लीं। शलवार के अंदर बनी एक जेब में डालकर इत्मीनान से बाहर आ गई। तल्लत के वालिद ने कई अजीज़ों को इतला दे दी थी, इसलिए एम्बुलेंस में बैठी तल्लत टेलीफोन वसूल करती और रोती रही। सिराज दीन और हनीफा ने बड़ी हमदर्दी और खलूस के साथ एम्बुलेंस में मैयत लिटाने की कार्रवाई पूरी की, बल्कि हनीफा तो तल्लत के गले लगकर रोई और उसे तसल्लियाँ भी दी। मौत की खबर फैलते ही घर मेहमानों से भर गया था। मोहल्ले में जिसने भी सुना चला आया। जब बेटियां आईं तो नहलाने और कफनाने का मरहला शुरू हुआ। माँ के बदन पर पानी डालती बड़ी बेटी रफाकत चौंक गई, तल्लत को बुलाया और कहने लगी, अम्मी तो हमेशा हाथों में चूड़ियाँ और अंगूठियाँ पहने रखती थी, कहाँ हैं वो? हाँ, तल्लत ने हवास बाख्ता होते हुए उनके कानों की तरफ देखा। ये 2 टॉप्स हैं। फिर रफाकत ने उसे दिखाए। अभी नहाने वाली ने उनके कानों से उतार कर दिए हैं, तो मुझे चूड़ियों और अंगूठियों का ख्याल आया। हाँ आपा, मैं ही उन्हें रिक्शे में डालकर लेकर गई थी। कई बार उनकी नब्ज देखी थी और हर बार चूड़ियाँ हटा कर ही देखी थी। उस वक्त अंगूठियाँ भी उनके हाथों में थीं, और जब एम्बुलेंस में ला रही थी उस वक्त भी देखी थी। सच्ची बात है आपा, मुझे कहाँ होश था। तल्लत फिर जोर जोर से रोने लगी। मैं अकेली थी, कोई बड़ा भी पास नहीं था। भागती इधर जाती थी और भागती उधर जाती थी। उस पर फ़ोन भी आने लगे थे। और कौन था मैयत के पास? हाँ, उसने दुपट्टे से आंखें साफ की। अस्पताल की एक आया थी जो वहाँ सफाई का काम करती है, और एक मददगार भी था।
तल्लत ने सारी तफसील बहन को बताई। मज़ीद बातें करने का वक्त नहीं था। उस मरहले में हर काम का वक्त मुतय्यन होता है, मगर ये ज़रा सी तशवीश भरी खुसर पुसर सारे घर में फैल गई। हाय हाय, हस्पताल में किसी ने मैयत की चूड़ियाँ उतार ली। तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह। जितने मुंह उतनी बातें। सोयम के बाद दोनों बहनें रफाकत और तल्लत हस्पताल चली गईं। उसी तरह रिक्शे में बैठकर सामने 2-3 मुलाजिम खड़े थे। तल्लत बहन को लेकर उस तरफ बढ़ी। उनमें सिराज दीन को पहचान गई। आपको मालूम है, मैं परसों अपनी अम्मी जान को लेकर आई थी और वह यहाँ आते ही फोत हो गई थी। बीबी जी, यहाँ रोज़ाना सैकड़ों मरीज आते हैं, कुछ फोत भी हो जाते हैं। अब हम किस किस को याद रखें? भाई, तुम्हारे साथ एक औरत भी खड़ी थी यहाँ, तुम दोनों ने मेरी बड़ी मदद की थी। बीबी, हमारा काम ही खिदमत करना है, जो भी आता है हम उसकी बढ़कर खिदमत करते हैं। क्या बात है बीबी? एक नए खिदमतगार ने आगे बढ़कर पूछा। हमारी अम्मी की कलाइयों से किसी ने सोने की चूड़ियाँ और 2 अंगूठियाँ उतार ली थीं। तोबा तोबा, अल्लाह माफ़ करे। बीबी जी, आप क्या कह रही हैं? अगर हस्पतालों में ऐसी हरकतें होने लगें तो खुदा का कहर ना नाजिल हो जाए। मगर वो औरत कहाँ है? कौन सी औरत बीबी जी? ये इर्द गिर्द सारी खिदमतगार औरतें ही तो फिर रही हैं। आगे बढ़कर खुद ही पहचान लें। पूछना, फिर किस्सा दोहराना, फिर एक जैसे रद्द अमल का इजहार होना, हाय वाय के सिवा कुछ ना मिला। दोनों बहनें मलाल लिए घर आ गईं। हनीफा बेगम ने घर जाते ही 1 हफ्ते की अर्जी भेज दी थी कि मेरी बेटी शदीद बीमार है और मैं कमूम की जा रही हूँ। ये अर्जी ले जाने वाला सिराज दीन ही था। हनीफा का मुंकी चली गई थी। उसका दामाद मकसूद अली किसी सरकारी दफ्तर में चपड़ासी था। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। उसने जहेज में मोटरसाइकिल मांगी थी। शादी के वक्त हनीफा मोटरसाइकिल नहीं दे सकी थी, मगर उसने वादा कर लिया था कि 1 साल के बाद ले देगी। अब उनका एक बच्चा भी हो गया था, इसलिए उसके दामाद ने साफ कह दिया था कि अगर मोटरसाइकिल नहीं लेकर देगी तो अपनी बेटी को बच्चे समेत घर वापस ले जाओ। कामुंकी जाकर हनीफा ने अपने दामाद को बुलाया और चूड़ियाँ उसके सामने रखकर बोली, बेटा, यही मेरा जीना मरना है, सारी जिंदगी की कमाई है जो मैंने बचा कर रखी थी, मगर ये अपनी बेटी और दामाद की खुशियों से ज़्यादा कीमती नहीं है। बेटा, तुम ये चूड़ियाँ बेचकर मोटरसाइकिल ले लो, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। अम्मा, तू कितनी चालाक है, तूने शादी पर ये चूड़ियाँ मुझे क्यों नहीं दी? इसी दिन के लिए रख छोड़ी थी, अब भी तुझे नहीं अपने दामाद को दे रही हूँ, उसने बेटी के शिकवे को सुनने के बाद जवाब दिया। उसने अपनी बेटी के हाथ से चूड़ियाँ छीन ली जो बार बार पहनकर देख रही थी, दामाद की गोद में लेकर रख दी। हनीफा के जाने के बाद बेटी और दामाद सोच में पड़ गए। दामाद तो सोने की ताज़ा तरीन कीमत भी पूछ आया था। चुनाचे तय ये हुआ कि सिर्फ 3 चूड़ियाँ बेचकर मोटरसाइकिल खरीद ली जाए और बाकी चूड़ियाँ किसी कड़े वक्त के लिए संभाल कर रख ली जाएं। जिस दिन मकसूद अली नई मोटरसाइकिल खरीद कर लाया तो बीवी ने मिन्नतें करके बाकी की चूड़ियां कलाई में कुछ रोज पहनने की इजाजत मांग ली। कुछ दिन बाद हनीफा वापस अपने अस्पताल ड्यूटी पर आ गई। फुर्सत मिलते ही सराजदीन और हनीफा एक दरख्त के साए में आकर बैठ गए। कोई आया था? हनीफा ने सरगोशी में पूछा। हाँ, तीसरे ही दिन 2 बेटियां आ गई थी, तेरा पूछ रही थी। फिर उन्होंने बड़ा शोर मचाया, एक से पूछा। डॉक्टर साहब के कमरे में भी गई। फिर क्या होना था? मैं तो साफ मुकर गया कि मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं कभी। मेरा पूछा था उन्होंने? हाँ, जिसके साथ तू गले लग लग के रो रही थी उसने बार बार पूछा था। तो तूने क्या कहा? मैंने कहा आपके इर्द गिर्द इतनी माइयाँ घूम रही हैं, पहचान कर पूछ लो। मुझे क्या पता उस दिन कौन आया था, कौन गया था और मेरे साथ कौन था। सिराज और हनीफा कहकहा लगाकर हंसने लगे। अच्छा, अब मस्ती मत कर, निकाल मेरा हिस्सा। सिराज, सच बात बताऊं, तुझे तो पता है मैंने इजार बन के अंदर बांधकर चूड़ियां लटकाई थी, मगर जरा गिरा ढीली रही। जब मैं जा रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला, एक एक करके चूड़ियां बस के अंदर ही गिर गईं। वो तो जब एक मुसाफिर ने एक चूड़ी उठाकर शोर मचाया तब मुझे पता चला। तू बकवास करती है, सिराजदीन चिल्लाया। तेरी नीयत बदल गई है।
تو कमीनी हो गई है, कमज़ात है, बेगैरत है, मैं तुझे अभी पकड़वाता हूँ। हनीफा ने जेब से 2 अंगूठियाँ निकाल कर हथेली पर रखी और बोली, तू ये ले ले, कसम से यही बची हैं, मैं तेरा गला दबा दूंगा, शोर मचाएगा तो अपना ही कुछ बिगाड़ेगा, तू भी इस वारदात में शामिल था, तेरे पास कोई सबूत है, मैं तुझे जलील करवा दूंगा अस्पताल में। सिराज, अपने आप को काबू में रख, मैं भी एमएस को बता दूंगी पिछले हफ्ते जो नौजवान हादसे में गुजर गया था, तूने इमरजेंसी वार्ड में उसकी 2.5 लाख की घड़ी उसी वक्त उतार ली थी। वो लोग घड़ी ढूंढते रहे थे, याद है उनका रोना धोना? मैंने तुझे उसमें से हिस्सा दिया था। कितना दिया था? सिर्फ 5,000। और ये चूड़ियाँ तो कई लाख की होंगी जिनके नसीबों की होंगी। मेरे लिए तो एक चूड़ी भी हराम है। अल्लाह करे तेरे कफन पर लगे हनीफा। सिराज के मुंह से गुस्से से झाग निकल रही थी। ओए बेगैरत, मुर्दों के जेवर और घड़ियां चुराने वालों की बद्दुआएं नहीं लगती। हनीफा जोर जोर से हंसने लगी। देख सिराज, हम दोनों का मौजो लगा हुआ है, कभी तू पल्ला मार लेता है, कभी मेरा दाव लग जाता है। गुस्सा ना खा, मैंने पता करवाया है, ये अंगूठियां 2 लाख की हैं। 1 लाख भी तुझे मिल जाए तू ऐश करेगा। वरना क्या? सिराज गुस्से से फुंकारा। वरना गंदगी में पत्थर फेंकेगा तो छींटे तेरे ऊपर भी आएंगे। दोनों का अंजाम एक जैसा होगा। बेहतर है कि मुंह बंद रख। हनीफा सीढ़ियों पर पोछा लगाती नीचे आ रही थी कि उसकी जेब में पड़ा फोन फड़फड़ाया। उसने हाथ रोककर फोन निकाला, सुना और चीखती हुई बाहर को भागी। टैक्सी पकड़ी और कामुकी रवाना हो गई। रोती और दुआएं मांगती जाती। फोन पर उसके दामाद के एक्सीडेंट की खबर आई थी। तफसील कोई बता नहीं रहा था। उनके घर पहुंची तो सारा मोहल्ला जमा था। उसे फौरन जाए हादसा पर ले जाया गया, जो पुलिस के घेरे में था और कार्रवाई नोट हो रही थी। 1 हफ्ता कबल मकसूद ने मोटरसाइकिल खरीदी थी। 8 दिन बाकायदा चलाता रहा था। आज पहली बार बीवी ने कहा था हमें भी सैर कराओ। वो खुद तैयार हुई। उसने सोने की चूड़ियां पहनी और 1 साल के बच्चे को भी तैयार किया। बीवी और बच्चा पीछे बैठ गए। आबादी से ज़रा बाहर निकले तो मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई। बीवी और बच्चा मौका पर ही फोत हो गए। दामाद की टांगें टूट गईं, मगर पुलिस अभी तक इस बात का सुराग नहीं लगा सकी थी कि पीछे बैठी हुई औरत की पूरी कलाई काट कर कौन ले गया था और क्यों। उधर पब्लिक अस्पताल के पिछवाड़े कूड़ा क्रिकेट चुनने वालों की झुग्गियों के आसपास फटे पुराने कपड़ों में एक औरत नजर आती है, जिसके हाथ में एक गुड़िया होती है। हमेशा गुड़िया का एक बाजू टूटा हुआ होता है। वो औरत दीवानावार राहगीरों, मोटर वालों और साइकिल वालों के पास जाती और कहती है, मेरी बेटी का बाजू वापस ला दो, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी का बाजू वापस ला दो, चूड़ियाँ रख लो, कलाई दे दो, मेरी इकलौती बेटी रो रही है, देखो। वो गुड़िया को आगे करती है, रोटी नहीं खा सकती, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, खुदा के लिए मेरी बेटी की मदद करो। वो सारी रात रोती रहती है, मुझे सोने नहीं देती, बेचारी पागल है। ये कहते हुए लोग गुजरते हैं और वो हवाओं के पीछे भागती रहती। लालच का अंजाम ऐसा ही होता है। माँ बाप के किए की सज़ा जवान औलाद, इकलौती औलाद के ज़रिए। मकाम इबरत है ये।